माइक बंद करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी मैंने। ओह। तो बच्चे लोग, हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का और बायोलॉजी का। लाइफ प्रोसेसेस न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हियर वी गो, हियर इज माय पीडीएफ ऑन स्क्रीन। और एज इंस्ट्रक्टेड सब बच्चों को ओवर द वीकेंड लखमीर सिंह परचेज कर लेनी है। हम लखमीर सिंह ही फॉलो करेंगे, हमारा फर्स्ट एज अ फर्स्ट कंटेंट, द मोस्ट बेसिक वन। इसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए डिफरेंट बुक्स कवर करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बी कवरिंग फॉर एवरी चैप्टर। एंड एनसीईआरटी विल बी गिवन टू यू एज अ होमवर्क। उसका बैक एक्सरसाइज और उसको रीड करके to find out what we have found in contradiction with Lakshmi Singh, that you need to find out and we'll discuss it on some day. ठीक है। तो हमारा हर चैप्टर के लिए कैसा रहेगा, we'll start with लखमीर सिंह, then I'll give you a day ताकि आप मुझे रिव्यू करके बता सको what ever different things we have found in लखमीर सिंह and एनसीईआरटी। क्योंकि those particular things which are different in both we will follow the एनसीईआरटी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जब हम ब्रेड मोल्ड को एक्सप्लेन करते हैं तो आप काफी बुक्स में पढ़ेंगे, इट इज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में आप उसके लिए पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, इट्स अ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। यू हैव टू फिक्स, स्टे विद द वर्ड ब्लॉब, नॉट नॉब। इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस पे मार्क्स कटते हैं मार्किंग स्कीम में, बोर्ड्स के अंदर। क्योंकि जो इवैल्यूएटर है ना, उसको ब्लॉब दिया गया है एज कीवर्ड और आपने नॉब लिखा है, तो उसके लिए वन कीवर्ड इज मिसिंग इन द आंसर। तो अगर आपके कीवर्ड्स मिसिंग होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए वट एवर इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद एनसीईआरटी, हमें वो एनसीईआरटी पर स्टिक करना है। इसलिए वन डे वील स्पेंड इन finding out, digging out कि what is different in NCERT from Lakshmi Singh, and we'll stick to NCERT for that. ठीक है। चलें अभी आगे। Life processes. So what are life processes? Whatever, because of whatever we are living, all those processes going inside our body are called as life processes. जैसे कि in our primary classes we read about digestion, nutrition, digestion, then what? रेस्ट। Circulation of blood in our body, respiration. All these are different life processes. We are going to discuss now that at cellular level in this class, that what at the cellular level happens when we are digesting food. What is are the cells or the organs, kidneys doing when we are filtering urine? What we are doing when we are inhaling. So cellular level, organs के level पे whatever functions that are going inside us, we will be discussing that in detail in this chapter, as life processes, right beta? So all the metabolic activities going inside us would be life processes. अच्छा, अभी लास्ट में टर्म्स पढ़ेंगे व्हाट आर एनाबॉलिक एंड ऑल। अभी के लिए ऑल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ इन अस, दैट इज life processes. Okay, so this is some very basic introduction that they have given us, that the frog jumping, butterfly, athlete running, how are they doing that? How are they deriving energy for all that? So, how are their body coordinating, like muscles coordinating with the blood, so that muscles are getting regular flow of oxygen and uh, food, so that they function very fast when they are running. So how all that is done, coordination between the different organs, that is covered in our 10th class in two chapters. Life processes is the event actually happening inside, and control and coordination may second chapter may we'll be reading about how the organs are coordinating together to perform a function, right? So in the next page, this is something very basic. I think you can read all this and find out that what are the characteristics of living things. This we have read since long, है ना? इतना बेसिक तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि what all living things do. तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, दिस पार्ट आई एम स्किपिंग एंड आई एम डायरेक्टली गोइंग टू लाइफ प्रोसेसेस. लेट अस रीड दिस डेफिनेशन व्हाट दे आर टेलिंग अस हियर. So the basic function performed by living organisms to make their life on this earth are called life processes. And you have to take notes side by side, beta. Don't just listen. Right. एक जॉट नोटबुक बना लो सेपरेटली, जिसमें अपने क्विक नोट्स नोट किया करो जल्दी से.
So whatever is maintaining life in us, that those processes are called as life processes. जैसे कि, for example, it is nutrition. Nutrition, as in how are we deriving nutrition from our food? That is nutrition, right? How do we procure food? How do we put it inside our body? Then how do we assimilate its content? So from procuring food to assimilating its nutrient, the entire process is nutrition. Next is respiration. Starting from the physical process, inhaling and exhaling, which we can see outside, to the cellular respiration, wherein a cell has got that oxygen that we have inhaled, and now in presence of that oxygen, the glucose that you have consumed is burning to give you energy, ATP particles. That is respiration. What is transport and excretion? Transport and excretion is anything required by the body at a site. How is that material sent to that? Like through which medium? Of course, we know blood, which is mostly watery. है ना? So that transport, how is it happening? And then how is excretion happening? Like if my blood has got impurities or the things that I don't want or the byproducts of my cellular processes, then those byproducts are thrown out of the body by excretion. Right, bache? And mind it, excretion is removal of liquid and gaseous waste, not solid waste out of the body. So, liquid waste we throw out with the help of sweating and urine. And gaseous waste, how do we throw out? That is by exhaling. So, how is liquid and gaseous waste thrown out is called as excretion. That is what we are going to read in this context. Then is control and coordination, which is written as response to stimuli. What is stimuli? Stimuli is anything from external environment that is impacting you. And how do you respond to it? That is the control and coordination mechanism of our body. As in, if your friend punches you like this, so what do? You Blink. take yourself aback and then you blink your eyes, right? And then your muscles tighten up to be ready to fight if that is required. अगर भाई से भाई की लड़ाई नहीं हो रही है ना, वो वाला टाइप्स, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी माय रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई. तो स्टिमुलाई वाज या स्टिमुलस. स्टिमुलाई इज सिंगुलर, स्टिमुलस इज प्लूरल, और द अदर वे आउट. नहीं, I was correct. So response to stimuli, to whatever is happening externally, which is impacting me, and I respond to it, that is response to the stimuli. And my control and coordination system is actually handling that process. Right? So altogether, like when you see gajar ka halwa passing by, if that is your favorite, and your mouth starts watering, your eyes dilate, so that is how you are responding to that gajar ka halwa, no? So gajar ka halwa in that case is the stimulus, and your response, mouth starting to water and eyes dilating, है ना? And your body getting ready to digest a lot of sugars now. So all these changes together, they are your response, and that is all handled by control and coordination system. Oh shit! Give me 1 minute, beta, please.
आई एम सो सॉरी बच्चा, देयर इज स्टॉर्म आउटसाइड। चलिए स्टार्ट करें। सो वेयर वाज आई? Right. Growth, movement, and reproduction. So, how do we move? How do we reproduce? How our bodies are growing? That all we'll be covering in life processes part. Okay. So, now this is the topic: energy is needed for life processes to happen. So, they are not like diffusion or osmosis. Like in wherein by simple diffusion, the carbon dioxide is absorbed by your body and carbon dioxide is released from the cells and thrown into your blood cells, and that is how they come out. Or it is simple diffusion ke through it is oxygen going into the cell. It's not like that. It is not that simple. Because osmosis and diffusion, they don't consume any energy of our body. Do you people know this? Osmosis and diffusion, उसमें हमारा कोई एनर्जी एक्सपेंस नहीं होता है. सो वट एवर एनर्जी यू आर मेकिंग इन साइड योर बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने में सेल से और ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाने में, हम उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं है हमारा एनर्जी का उसमें. लेकिन लाइफ प्रोसेसेस में एक्सपेंस होती है एनर्जी, हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है. तो हमें ये एनर्जी ऑब्टेन भी करनी है पहले. एंड हाउ डू वी डू दैट? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. चले अभी आगे. तो फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड दैट फूड इज गिविंग अस एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस हैपनिंग इन आवर बॉडी, राइट? चले अभी आगे. न्यूट्रिशन. So food is an organic substance that we consume for five nutrients. What? Carbohydrates. Tell me, complete quickly. Vitamins, minerals. Carbohydrates, proteins, vitamins, Protein. minerals, fats. Right, absolutely. इसमें से the most easy to digest is? Carbohydrates. Really? Fats. Glucose. Fats are the toughest to Starch. digest. That that is the Glucose. vitamins and minerals बेटा, वो आपके स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं. तो vitamins and minerals, they are most easy to bring it to the blood. And carbohydrates, fats और प्रोटीन्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. ठीक है. चले अभी आगे चले. ओके. ओके. So the simplest food is glucose. It is also called as simple sugars. A more complex food is called as starch. Now, what is a starch and what is a glucose? We will relate it to the beads in a necklace. Like one single bead is glucose, and when you put a lot of beads in one thread, they become a necklace. That is a starch. So I can also in scientific language say that glucose is a monomer. I'm here to discuss one of the हो गया cases. Advika beta, Advika bache, mute yourself. Yeah, Anima, I had a call with Nihal. Advika beta. Okay. So, yes, where was I? I was explaining monomer and polymers, right? So if I say glucose is one bead and I keep on attaching those beads together, that makes a necklace which is called as a starch. So starch is a complex sugar. Why? Because it is made up of a lot of simple components together. Understood or not, everyone? Is this clear? Okay. So now starch is made from glucose. How? By repeating glucose again and again, you make starch. The general name of substances like glucose, sugar, or starch is carbohydrates. So that is a general name given to both the categories together. Carbohydrates are most common foods for getting energy, and they are mainly in our three types of food. What? Rice, breads that we consume, and potatoes. कार्बोहाइड्रेट्स इन तीनों में मैक्सिमम मिलते हैं ना, स्टार्च इन तीनों में मैक्सिमम होता है. दे आर क्वाइट स्टार्ची. अच्छा, एक बार कभी क्या करके देखना, वेन एवर मम्मा इज बॉइलिंग राइस, वो जो स्ट्रेन राइस होते हैं, वेन एवर दैट इज कुक्ड एट होम, तो वो जो स्ट्रेन करके वाटर दैट मम्मा स्पिल्स अवे, वो जो स्ट्रेन्ड वाटर है, इफ यू, जब वो ठंडा हो जाए प्लीज, तो उसको ऐसे टच करके देखना, दैट्स अ लिटिल slimy, a little sticky. So that sticky part is starch in it.
है ना? समझ में आया सबको व्हाट इज स्टार्च? वो जब स्ट्रेन राइस बनता है तो जो व्हाइट डेंस एक लिक्विड सा निकलता है जिसे हम स्ट्रेन करके हटा देते हैं, दैट इज very rich in starch. Okay. A wider definition of food, however, also includes mineral salts, vitamins, and water, which are essential for normal growth and development of an organism. The process of taking in food and utilizing it is called nutrition. This is how you explain the complete process nutrition. That you are taking in food, which is called as procuring food. Procuring. Procuring food. So you take in food, that is how you procure food. So do every organism procure food the same way? We put it with our hands in our body, and birds, they get it from their beaks. That is how they procure food. So procuring food, we have got different styles. When we have procured it, then we will utilize it to get energy. This is nutrition. Right, everyone? Clear, no? Any doubts? Any questions still here? And what we are deriving out of this process nutrition are called nutrients. A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. So न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है, इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक, वो सब्सटेंस है जो कि हम अपने सराउंडिंग से डिराइव करते हैं टू मेक एनर्जी फॉर आवर सेल्स, जिससे कि हमारी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस हो सके. राइट एवरीवन? क्लियर? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? हाउ वुड यू डिफाइन दैट इन 10th? ओके. नाउ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. ग्रोथ एज इन, मैं अभी प्रोटीन्स को क्लासिफाई करती हूँ. सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग डजंट मीन्स दैट वाला बॉडी. बॉडी बिल्डिंग मीन्स लाइक इतना सा बेबी बॉर्न नाउ ग्रोज अप, 10th ग्रेडर हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए. सो हाउ इज दिस मास डेवलपिंग इनसाइड यू, हाँ बोन्स मसल डेवलपिंग डेवलपमेंट. इनसाइड यू? हाँ जी अगम. हाँ मसल एंड बोन्स डेवलपमेंट. Yes, right. It can be everything, no? Organs भी बड़े हो रहे हैं. So that is also increasing in size. Then blood बढ़ेगा body का, obviously. So all together आपकी body grow कर रही है. So that is done by proteins. Vitamins and minerals, they are protective foods. They mainly enhances our self-defense mechanism. Then carbohydrates and fats, they are energy giving foods. Instant energy चाहिए तो fats. And then carbohydrates, they are also energy giving foods to us. Then what is left? Carbohydrates, fats covered, protein covered, vitamin, minerals covered. Rest is just water. है ना? Roughage in water. So roughage is the bulk that we add to our body, actually, which we cannot digest, which is cellulose. है ना? So cellulose जो हम बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करते, दैट एक्ट्स एज अ रफेज फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी सिर्फ इसलिए हम इसलिए कंज्यूम करते हैं, करना चाहिए. द फर्स्ट दैट इज एडिंग बल्क टू द बॉडी, एंड अदर दैट इज इंक्रीजिंग द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी. So roughage, that is we cannot digest mainly. And then is water. So these are the components of food that we are, because like for which we are eating our food, for all these nutrients. Right everyone? चले अभी आगे. Okay. Now modes of nutrition. What are those mode of nutritions? Autotrophs, wherein plants make their own food. है ना? जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से दे मेक देयर ओन फूड. और जिनको थोड़ा सा डेफिशिएंसी रह जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद भी, दे टर्न इंसेक्टिवोरस, बट दे विल बी कंसिडर्ड इन ऑटोट्रॉफिक ओनली. हेटेरोट्रॉफिक मोड में तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, ऑटोट्रॉफिक मोड में ही कंसिडर करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट दे आर ग्रोइंग इन रीजन जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज हैं. तो autotrophic mode of nutrition is comprising of plants that can produce their own food. So only producers, only autotrophic mode of nutrition किसमें है? Plants में, right? Blue green algae. So that is also a plant like organism, right? Algae, blue green algae. Now what are heterotrophic mode of nutritions? जैसे कि
फाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या रिकलेक्ट कर सकते हो? जल्दी 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 बोला करो फटाफट से, किसी को याद नहीं आ रहा। Insectivorous. इंसेक्टिव, अभी बोला इंसेक्टिवोरस ऑटोट्रॉफिक में ही आएगा। हाँ पैरासिटिक। पैरासिटिक मैम मैंने बोल दिया। Herbivorous. मैम होलोजोइक। बेटा हर्बीवोर्स में तो आप ऑर्गेनिज्म बता रहे हो। रजत म्यूट योरसेल्फ बेटा, रजत सेटल म्यूट योरसेल्फ। मैम होलोजोनिक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या होता है होलोजोइक? और हम क्या होलोजोइक नहीं है? होलोजोइक क्या होगा? व्हाट इज होलोजोइक? Organisms which take new digest their food by ingestion. तो हम होलोजोइक नहीं है? हम होलोजोनिक होलोजोइक तो है। हम होलोजोइक है, तो फिर कौन होलोजोइक नहीं है? मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होगा, मैम फंगाई। फंजाई, और ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया। कोई इंसेक्ट जो होलोजोइक ना हो? सोचो। अच्छा ऐसे इंसेक्ट्स बताओ जो सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं। मस्किटो। सिक्स्थ क्लास से भी अच्छे से Mosquitoes. पढ़ाई नहीं की है लगता है, सिक्स क्लास से भी। Mosquitoes. ये सिक्स क्लास में था जो मैं अभी रिवाइज करा रही हूँ। Ma'am, mosquitoes. मस्किटोस और हाउस फ्लाइज। नहीं हाउस फ्लाइज नहीं, वो लिक्विड डाइट पे फीड नहीं करती है। अच्छा फिर वो किस पे फीड करती है अद्विका? तो कुछ खाते हैं ऐसे। कुछ खाते खाते हैं। अच्छा तो वो जो बैठ के ऐसे ऐसे कर रही होती है मक्खी, वो हाथ साफ कर रही होती है कि अब मैं कुछ खाना खाऊंगी ऐसे उठा के? Ma'am, butterflies. 7th 8th क्लास की बुक्स में है ये सब, जो क्लियर नहीं है अभी तक, जिसकी क्लैरिटी नहीं है। बेटा हाउस फ्लाई कभी भी सॉलिड खाना नहीं खाती है, वो जिस पे बैठती है ना वो उसको खाती नहीं है बैठ के। इन अ वे, इन अ वे दे स्पिट ऑन इट एक्चुअली, एंड दे स्पिट एंजाइम्स ऑन इट। अपनी बॉडी के एंजाइम्स उस पर स्पिट करते हैं। दोज एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, and then directly they with their proboscis they suck in the nutrients directly. So वो लिक्विड डाइट पे ही है एक्चुअली। ठीक है डाइट कंट्रोल कर रहे हैं ना। चले Not count. क्या आ गया बेटा? That doesn't count. दैट डजंट काउंट। चलो अभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिक्स क्लास में देखा था ये डायग्राम पहली बार लक्ष्मीर सिंह में। लाइट एनर्जी के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंडर साइड से एंटरिंग, है ना, सो नाइसली शोन। और ऊपर से ऑक्सीजन से, लीफ के ऊपर से निकलता है ऑक्सीजन, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट हाउ इट इज हैपनिंग? नहीं नीचे से ही निकलता है ऑक्सीजन भी, ऊपर कोई होल्स नहीं होते हैं निकलने के लिए। स्टोमेटा अंडर साइड पे ही होता है लीव्स के। तो लीफ के अंडर साइड पे स्टोमेटा होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और वहां से ऑक्सीजन को निकाल रिलीज करता है। बट दैट डजंट मीन 10th में ये पढ़ने वाले हैं, 10th में डार्क और लाइट रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि कैसे ये सेल्यूलर लेवल पे होता है। पर यहाँ तक हम सबने पढ़ा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इनहेल्ड थ्रू स्टोमेटल पोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर सनलाइट ट्रैप हो जाती है, वहां पर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट्स, ये रिएक्ट कर जाते हैं। दीज आर सिंपल कंपाउंड्स राइट। इन सिंपल कंपाउंड से प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है, दैट इज देन चेन्ड अप एज स्टार्च। तो ऐसे बॉडी प्लांट्स के अंदर स्टार्च बनता है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6th standard, so no need to go into details of this now. Okay, but that doesn't means ये पढ़ना नहीं है, ये सब read करना है line by line. Right, so those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. मुझे कई बार ऐसा लग रहा है मैंने 6th की बुक ओपन कर रखी है, कितना बेसिक चल रहा है ये सब कुछ अभी तक ना, है ना। फिर मैं बार बार यहाँ चेक करती हूँ, नहीं नहीं 10th की बुक ही है, इतना बेसिक 10th में ही है।
So, autotrophic organisms contain the green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy or solar energy. ठीक है बच्चे, कुछ नया नहीं था. Heterotrophic mode of nutrition. Hetero means when from others we are deriving our nutrition. We are not making it inside us. So that is heterotrophic. And now heterotrophic nutritions can be of various types ahead. So heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organisms cannot make or synthesize its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water, and depends on other organisms for its food. So हम या अदर एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. राइट बच्चे? हमें हमारे फूड न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए किन पर डिपेंड करना पड़ता है? किसी बॉडी पर जो आउटसाइड हम हमारी बॉडी के आउटसाइड है, तो उससे हम वो फूड डिराइव करते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स का फूड नहीं है CO2 और H2. दैट्स नॉट देयर फूड. Their energy source is sun. So from sun they are deriving energy, and with the help of the simple inorganic materials. वो बहुत simple से compounds हैं CO2 and H2O. Such a simple thing that is. और उससे वो फिर complex sugars बना देते हैं. तो simple चीजों की help से they synthesize a complex thing, that is photosynthesis, and we are डूइंग रिवर्स ऑफ इट. हम लोग क्या करें? हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कंज्यूम करके we break it down into simpler things, that is CO2 and H2O, and releasing that in nature. So actually we are interdependable, right? We are depending on each other. For the simple inorganic compounds, they are depending on us because we will be breaking it down further and giving back to them, right? And for food we depend on them, so we are interdepending. Right, no bache? Clear, no? All the animals had heterotrophic mode of nutrition. Some bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. चलें अभी आगे. Okay, those are organisms which cannot make their own food from organic substances like carbon dioxide, water, depend on other organisms and called heterotrophs. देखो दोबारा से वही बात in a different style. Animals are heterotrophs. Dog, man, cat, deer, bear, lion, cow, etc. They're all heterotrophs. Non-green plants like yeast are also heterotrophs. Non-green plants doesn't mean croutons in your garden, beta. Remember croutons? देखे हैं सबने croutons? So croutons non-green है, it doesn't mean वो photosynthesize नहीं करते हैं. How do they photosynthesize? Tell me. We read that in 8th. Tell me everyone. Anyone? जल्दी से. नहीं. They still have the green pigment. It's just that other pigments are more So prominent where is that green pigment then? in the leaves So why are the leaves not green then? because other pigments are more overshadowing. So they are at the periphery, no, kind of a thing. So actually, chloroplast is a green color pigment and chromoplast is anything except green in the plants. So chromoplast is actually at the periphery and chloroplast is actually underneath that, right? Understood or not? It still has chlorophyll in it, but वो hidden है. किससे? ऊपर chromoplast है. तो याद है किसी को? क्रोटॉन्स पर्पल लीव्स के प्लांट्स होते हैं ना, मॉव, पर्पल, अलग अलग कलर्स के होते हैं. तो वो जो होते हैं वो उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब यहाँ पर है जैसे यीस्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अभी आगे. ओके. Types of heterotrophic mode of nutrition, that is saprotrophic, parasitic, and holozoic mode of nutrition. Saprotrophic. Saprotrophs are what? कौन से organisms होते हैं saprotrophs या saprophytic organisms? कौन से होते हैं? The dead and decaying matter. Absolutely. Like name one fungi that feeds on dead and decaying matter. Mom, bread molds. Yeast. Rhizopus. 10th में है तो we'll call it rhizopus now. है ना? और mushrooms. Mushrooms also feed on dead and decaying matter, and mushroom is also a fungi. है ना? Clear है ना? So what are these? These are fungi
एंड ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? When Ma'am, an when one organism, yes, go ahead, yes. depend, ma'am, when an organism is dependent on a host for its living. So how are we not then parasites? Are we also parasites? Because we are also depending on plants. Are we parasites? Ma'am, they Why require, not? we take food after killing the plants, but they don't kill the plant, they just use its nutrition. Are you really not killing the plant when you pluck it away for your spinach, Ma'am, for your it dies cauliflower? after that. It dies after Ma'am, that. ma'am, we cook food and then we eat it. So okay, if the organism is not cooking the food, then that is a parasite. I'm playing with you people. आप लोग को कोशिश तो करो बाहर आने की इसमें से कंफ्यूजन से. Parasites take the synthesized nutrients from the host living. And do we not take synthesized food from plants? And we take them in complex form. So how do Ma'am, they parasites take live, it? ma'am, they live on or inside the body of the host, ma'am. So is Cuscuta living inside the other plant? Write it in your notebooks, everyone. Why are humans not parasites? Cuscuta तो बाहर दिखता है ना? देखा है सबने Cuscuta? Ma'am, because होगा the आपके आसपास nutrition, जरूर. ma'am, In the any garden which nutrients, is not very well taken care of, try finding a Cuscuta. वो ऐसा पूरा कुछ येलो कलर की ऐसे लंबी लंबी सी जैसे डेकोरेशन हो, जो रिंकली रिंकली उसके ऊपर लटक रही होती है ट्री के ऊपर, तो वो कस्कुटा होती है. वो पैरासिटिक प्लांट है, कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट. तो ma'am, we उसमें don't directly consume the nutrients डायरेक्टली तो from the इनडायरेक्टली plant. कैसे करते हैं? Ma'am, cook करने के बाद, आप इसे नोट करो. you'll find out good thing, a very good thing. गूगल मत करना तेजस बेटा, तू तो शुरू भी हो गया. नहीं तो शुरू भी हो गया बेटा गूगल करना. इतनी जल्दी थोड़ी रिजल्ट मांगा था मैंने. No, ma'am. कितनी कितनी ऐसे ऐसे बस ऐसे फटाफट लग जाते हो ऐसे. ये मैम रुको, आपकी साइड वाली विंडो पे खोल लेते हैं पहले गूगल. कोई जरूरी नहीं है इतना इतना रेडिली रिस्पॉन्ड करना. आराम से रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, फिर बताना. डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ मत लेना बेटा, ठीक है? ओके. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको डिफरेंस पता करना है कि क्या है. गिव मी 1 मिनट बच्चे प्लीज.
सॉरी बच्चा। चले अभी। सो किसी ने डिग इन किया Mm, पैरासिटिक? Ma'am, हाँ जी। ma'am, parasitic mode of nutrition is in which that organism derives its food from another living organism. एज इन? What, ma'am? एज इन लिविंग Living ऑर्गेनिज्म? organism. तो क्या समझे इससे, मतलब मुझे समझ नहीं आई। ये तो बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं मैम, पहले living नहीं बोला था. Then you gave example of how we also depend on plants and all. We don't depend on other human beings. चलो पढ़ें इसको। और किसी ने किया गूगल इतने में? मैम मैंने तो सामने पढ़ा था. अच्छा अच्छा, यहाँ पढ़ा। ओके। So the parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from body of another living organism called its host without killing it. So हम लोगों ने न्यूट्रिशन डिराइव किया, प्लांट ने जब कंज्यूम कर बना लिया, फूड बना लिया, तो वी टुक इट फ्रॉम द प्लांट, right? So if I have eaten a mango, the mango is plucked from the plant and then I have consumed it. So it's not like continuously that is generating food and I am consuming it. It consumed, I took it from it. So in a way, I killed the thing that I have taken first, right? And then I have consumed. Advika, you were not making the right sense that time. I knew you were somewhere very close, but you were not making correctly the point. So when it is a parasite, a parasite is actually continuously feeding on the living organism. The living organism is generating food, parasite is consuming that. So it doesn't take the food away or kill the organism and then feeds on it. Understood or not, beta? What is a parasite? Clear, no? So without killing the host, it keeps on deriving the nutrient from it. So the organism which obtains the food is called a parasite, and from which it is derived is called a host. A parasite is an organism which feed on another living organism, is called its host. Right, everyone? Cuscuta, as I just now told you, Amarbale deodar, that is a completely parasitic plant. It feeds on another plants, derive food from those plants, right? Then what else is written here if I've missed something? Parasitic mode of nutrition is observed in several fungi and bacteria and few plants like Cuscuta. ठीक है बच्चे, clear? Okay. Now some animals like Plasmodium and roundworms, they are also parasitic. Plasmodium, where have you read that? Tell me, what are Plasmodiums? What have you read about it till now? 8th class याद है किसी को? Microorganisms are friend and foe chapter. मैम वो मैम एक वायरस था जो हम मॉस्किटो के ऊपर बैठते थे जिससे मलेरिया. वायरस, प्लास्मोडियम, पिटाई हो जाएगी। प्रोटोजोआ, प्लास्मोडिया वायरस होता है। प्रोटोजोआ, यस मैम, भूल गया, प्रोटोजोआ से कौन मलेरिया से होता 4 किए थे प्रोटोजोआ वहां पे? ऐसे डिलीट ऑल का बटन कहाँ है तुम्हारा? उसको जैम करवाओ। ये हर बार डिलीट ऑल कर देते हो सब कुछ सीख के। कौन से 4 किए थे, जल्दी से बताओ। है. मैम किसी को भी याद नहीं है? प्रोटोजोआ फंगाई. प्रोटोजोआ, इसकी पिटाई कर दो कोई जाके प्लीज। बन बन जाए प्रोटो। क्या कह रहा है बेटा तू? मैं तुझे याद कराती हूँ, रुको सब लोग थोड़ा ध्यान से ब्रश अप करो, है ना? ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो 5 ऑर्गेनिजम्स कौन से पढ़े थे हमने तब? बैक्टीरिया, देन वायरसेस। और मैंने ये बात जो पिछले स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, मैंने कितने अच्छे से मेमोरी में फीड किया था। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटे वायरस होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया को भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। याद आ रही है प्रिशा ये लाइन? है ना? Yes. तो डिलीट ऑल क्यों कर रखा है फिर?
बैक्टीरिया बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस उनसे भी छोटे, एंड दैट इज एक्चुअली ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। फिर क्या पढ़ा था आपने? वायरसेस के बाद पढ़े थे फंजाई, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? एल्गी, एंड देन प्रोटोजोन्स, राइट? प्रोटोजोआ 4 टाइप के पढ़े थे। कौन से 4 टाइप के पढ़े थे 8th में प्रोटोजोआस? किसी को भी याद नहीं है? साइंस में फुल मार्क्स किसी के भी नहीं आए थे? Yeah, I got full. यू गॉट फुल और फिर भी याद नहीं है? कौन Um, से? कौन से 4 टाइप्स प्रोटोजोआ? एमपी याद है? एमपी, मलेरियल पैरासाइट, क्या नाम था उसका? प्लास्मोडियम। अमीबा, एंटामीबा, कुछ याद आया? और डैड स्लिपर, पैरामेशियम। नहीं, अभी भी नहीं? लिख लो बेटा, नहीं याद आ रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि वहां जब याद किया है तो सिर्फ ओरली याद किया है, उन्हें लिखा नहीं है ऐसे नोट्स में जो अभी भी पढ़ पाओ, कभी ओपन कर पाओ। तो 4 टाइप के हमने प्रोटोजोआस पढ़े थे, जिसमें से एक एमपी था, मलेरियल पैरासाइट, जो कि प्लास्मोडियम था। और किस वेक्टर के थ्रू ये हमारे बॉडी में घुस जाता है? फीमेल एनोफिलीज के थ्रू। तो ये प्लास्मोडियम कहाँ घुस जाता है? फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में, तो ये पैरासाइट है। और होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज, राइट? और उसकी बॉडी से ये हम में आ जाता है। तो पैरासाइट कौन है? प्लास्मोडियम। और होस्ट कौन है? हम। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक yes, है। ma'am. और राउंड वर्म्स, आप खुद से थोड़ा डिग करो, राउंड वर्म्स कहाँ थे, कहाँ पड़े थे, कहाँ होते हैं, देखो कहीं अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, चले अभी आगे। हिंट भी दे दिया अब तो मैंने, कहाँ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दी होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच, गूगल मत कर तेजस, तू पढ़ ले, हाथ ऑफ कर ले बेटा कीबोर्ड intestine. से ना, तो फटाफट लग जाता है ऐसे ऐसे करके एकदम से। दिखता है बेटा क्लियरली कि तू गूगल करने निकल गया हाँ है। शायद वो पेट Ma'am, में, intestine. हाँ, हाँ शायद वो स्टमक के अंदर Intestine. होते हैं। एक मिनट एक मिनट, क्या क्या तेजस? नहीं मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं ना? ठीक है, अच्छी बात है। क्या कह रहा था अगम बेटा? Ma'am, they found in the intestine. अच्छा, पता नहीं, बाकी सब कंफर्म करेंगे, मुझे तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। दी होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो हम कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, हम उसी के डेराइव न्यूट्रिएंट पे फीड नहीं कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड प्लांट्स बना चुके हैं, हम उस पे फीड कर रहे हैं। तो वी एक्चुअली takes the complex organic food material into our body by the process of ingestion, and then the ingested food is digested and then absorbed by the cells of the body, right or not? Clear or not? तो होलोजोइक मतलब एज अ होल, जो कॉम्प्लेक्स फूड बाहर बनाया प्लांट ने, वो एज अ होल कॉम्प्लेक्स ही हमारे अंदर डाल लिया हमने, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया उसको इनटू सिंपलर थिंग्स अगेन। अंडरस्टूड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? राइट ना बच्चे? क्लियर? तो कौन से हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। राइट एवरीवन और नॉट? क्लियर? ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नाउ। राइट, ओके। सो हम लोगों ने ये 6th क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, वो उसकी प्रेजेंस में सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है सबको? जब 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेल पढ़ी थी, सबको याद है उसका स्ट्रक्चर कैसा था? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? Ma'am, 3 ovals and then um डबल and there's मेम्ब्रेन a ऑर्गेनेल होती है एक क्लोरोप्लास्ट, जिसे सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अपना डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, डॉट 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 डॉट, जिसे आप स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा।
सो ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर आर प्रेजेंट कॉइन लाइक डिस्कॉइडल शेप, मतलब कॉइन लाइक स्टैक्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स, और उन थाइलाकॉइड्स के स्टैक बने हुए हैं विच इज कॉल्ड एज ग्राना। सो ये ग्राना है ऑल टुगेदर, ये स्ट्रोमा है द मैट्रिक्स। और Lamellar. हाँ जी बेटा, क्या कह रहे बच्चे? Ma'am, I was saying they're connected through lamellae, the यस राइट, लेमिला राइट। सो इस तरीके से याद आ रहा है, ब्रशअप हो रहा है। अब जो लाइट रिएक्शन है सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, लाइट रिएक्शन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो होता है इन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ग्राना के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन है जो शाम को होगा जब सनलाइट नहीं होगी, दैट हैपेंस इन द स्ट्रोमा आउटसाइड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो लाइट एंड डार्क रिएक्शन को 10th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और वो कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है, ग्राना और स्ट्रोमा। ग्राना के अंदर होते हैं लाइट रिएक्शंस और स्ट्रोमा के अंदर होते हैं डार्क रिएक्शंस। याद आ गया सबको 9th का कंटेंट? ठीक है, ओके। तो इन्हीं के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? इसके अंदर, इनके अंदर। ये जो स्टैक लाइक थिंग्स है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली यही वो साइट है। तो मैंने बात की थी लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीफ के अंदर चलते हैं सेल, सेल के अंदर खाना बनेगा। सेल के भी अंदर चलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर चलते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स के अंदर पैक्ड है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। और उस पिगमेंट की वजह से वहां पर, दैट इज द साइट जहां पर सोलर एनर्जी ट्रैप क्लोरोप्लास्ट करता है और वहां पर फोटोसिंथेसाइज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, ओके। अभी तो बहुत डिटेल में करेंगे इससे अभी आगे कवर। बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब पहले पढ़ा हुआ है, इसको सबको रीड करना अपने आप से। ओके, सो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है? सन सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो लाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया था वाटर का, ब्रेक किया था, वैसे यहाँ पर लाइट, सनलाइट की हेल्प से वो वाटर को ब्रेक डाउन कर देगी, वाटर का, राइट? तो वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज द सेकेंड स्टेप। एंड व्हाट इज द फाइनल थर्ड स्टेप? देन उसके अंदर, प्लांट के अंदर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी। अभी सब केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आए हैं मेरे साथ, है ना? तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन वाज प्लस ओ माइनस एच, रिडक्शन वाज माइनस ओ प्लस एच। तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब प्लस एच हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रिडक्शन पड़ा था विच वाज माइनस ओ और प्लस एच। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में इट इज प्लस एच, और वो बनकर रिडक्शन होकर क्या हो जाएगा? इट विल गिव यू ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से वो जो ग्लूकोज में टर्न हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स में टर्न हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? नाउ दिस इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। 7th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसे शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि सनलाइट के बिना प्लांट वुड डाई। कैसे किया था, याद है किसी को? फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर दी थी एक लीफ पर। पहले उस प्लांट को 3 days एक डार्क रूम में रखा था, ताकि उसका जो कंज्यूम्स, उसका जो सिंथेसाइज्ड स्टार्च है वो प्लांट जिंदा रहने के लिए कंज्यूम कर दे। 3 दिन तक वो उसी स्टार्च पे जी लेगा जो उसके अंदर बना हुआ था, पर और वो बना नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं दिया।
और जैसे ही आप उस 3 दिन रखे हुए डार्क रूम में रखे हुए प्लांट के किसी एक लीफ पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दोगे और उसे सनलाइट में रख दोगे, तो बाकी सब जगह स्टार्च मैन्युफैक्चर हो जाएगा, लेकिन उस लीफ में नहीं होगा जो एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड है। दिस प्रूव्स, अब आप इसका स्टार्च टेस्ट करके देखोगे। याद है सबको, 6th में किया था स्टार्च टेस्ट, क्या था वो? जल्दी से बताओ। पहले Ma'am, आपने blue उसे black color rice. कम अगेन। Blue black color in rice or potato. ब्लू ब्लैक कलर, वेरी गुड। क्या पुट किया था? डाइल्यूट आयोडीन। Iodine solution. आयोडीन सोल्यूशन, राइट, डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन। उससे पहले एक प्रिकॉशन थी एक्टिविटी में, क्या थी? मैं ये सब इसलिए रिवाइज करा रही हूँ बेटा, 10th के पेपर में 6th Ma'am, से भी this should क्वेश्चन आ जाते हैं। not be chewed. नॉट, No, no. उसका क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए एक एक्टिविटी की थी, नहीं तो ये ग्रीन कलर ब्लू ब्लैक के साथ मिक्स होकर आपको रिजल्ट नहीं शो होने देगा क्लियरली। याद आ रहा है किसी को? वाटर बाथ में रखा था बॉय वो मैम उस डायरेक्टली, अल्कोहल को कभी डायरेक्टली हीट नहीं करते ना, याद है ना? अल्कोहल, जो अल्कोहल्स होते हैं उन्हें कभी डायरेक्टली फ्लेम पे हीट नहीं करते, दे कैन कैच फायर, दे आर इनफ्लेमेबल। तो आपने एक वाटर बाथ रखा था, उसके अंदर एक बीकर टेस्ट ट्यूब रखा था जिसमें अल्कोहल था, और उसके अंदर लीफ डिप कर दी थी फॉर सम टाइम। तो वो उसने क्या किया था, ग्रीन कलर का पिगमेंट रिमूव कर दिया था। तो लीफ कैसी हो जाएगी? कुछ ट्रांसल्यूसेंट सी टर्न हो जाएगी लीफ, कलरलेस ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाएगी, क्योंकि उसका क्लोरोफिल इज रिमूव नाउ। और अब आपने उसके अंदर डाइल्यूट आयोडीन पुट किया था, तो इट गेव यू नो ब्लू ब्लैक कलर, शोइंग दैट वो एल्यूमिनियम फॉइल से कवर लीफ हैजंट सिंथेसाइज्ड स्टार्च। अंडरस्टूड और नॉट? दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट बेटा जी, राइट? चलें आगे। क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पता लग गया, सनलाइट का इंपॉर्टेंस पता चल गया, है ना? इसी तरीके से एक्टिविटी है ये पूरा टॉपिक, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यू विल बी कंप्लीटिंग दैट एज ए होमवर्क। देखो ये आपके सिलेबस में है बच्चे, सनलाइट नेसेसरी है, ये वही जो मैंने अभी सब बोलकर एक्सप्लेन किया, दैट इज शोड टू योर हेयर। ये सब आपके सिलेबस में है जो आप पहले करके आए हो। डीकलराइज लीफ पे आयोडीन टेस्ट किया है, राइट? अब पता लगे इंपॉर्टेंस क्यों कहते हैं पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। 6th से ही कहने लग जाते हैं ना पढ़ाई कर लो, इसलिए कि 10th में मार्क्स आएंगे अच्छे। फिर एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, ये सब था पहले आपके 6th के सिलेबस में। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप खुद से रिवाइज करने वाले हो। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे किया था चेक, याद है किसी को? KOH का बाउल रखा था। वाई KOH? व्हाट इज KOH? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों रखा था उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में? सब साफ है। क्यों? क्या करता है KOH? इट एब्जॉर्ब CO2। तो आपने क्या किया था, एक इन्वर्टेड जार रख दिया प्लांट के ऊपर, और वहां पर रख दिया साइड में KOH। उस इन्वर्टेड बकेट के नीचे, ट्रांसपेरेंट ग्लास के नीचे जहां आपने पॉटेड प्लांट रखा है, वहां पर KOH रखने से उस पॉटेड प्लांट के नीचे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सब KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। तो अब उस सेटअप में कोई CO2 नहीं है, और अब आपने उसे सनलाइट से एक्सपोज भी कर दिया, वाटर भी कर रखा है, लेकिन फिर भी वहां पर सिंथेसिस नहीं होगा स्टार्च का। गेटिंग इट और नॉट बच्चे? KOH का नेचर याद आ गया? और हाँ, एक और क्वेश्चन 10th के बोर्ड में देखा गया क्वेश्चन है बेटा ये, कि आपने ये इंश्योर कैसे किया कि CO2 एंटर नहीं कर जाएगी? वैसलीन By से, applying Vaseline. वैसलीन अप्लाई किया था आपने उस कॉर्नर पे, याद आ गया ना? इतने पुरानी यादें ताजा हो रही है। मैम है 10th में एक्टिविटी है, हाँ राइट। एनसीईआरटी में है। तो ये 7th 8th में भी किया है आप लोगों ने, जिन्होंने लखमीर सिंह से पढ़ाई की है 7th 8th में, ये सब किया होगा वहां पे, है ना? देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कर लो, या वो जार में सॉलिड फॉर्म में रख दो, इन्होंने उसे सॉल्यूशन के फॉर्म में रख दिया है। तो उन्होंने एक्चुअली ये इसमें कैसे शो किया है कि लीफ को पार्टली आपने जार में डाल दिया जहां पर KOH है, और पार्टली बाहर एक्सपोज्ड रहने दिया। तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, इतने ऊपर टॉप हाफ पोर्शन में तो स्टार्च का सिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, बट ये टिप में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना बच्चे? याद आ गया? ठीक है। और आप इसे वैसलीन से सील कर देते हो इस सेटअप से, ताकि बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर जाए अंदर।
यहां से हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, इस टॉपिक से मैं करवाऊंगी बेटा। इससे पहले का पूरा आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? 10th क्लास। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि कॉन्सेप्ट्स को एंगेजिंग बनाकर, इजी बनाकर आपको समझा सकूं। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो ड्रॉप मी अ मैसेज, विल डिस्कस। और बाकी तो बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, रीड करना पड़ेगा बायो का काम, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट बैच जल्दी से स्विच ऑन योर कैमरास।